ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ओके, नया टॉपिक, नया जोश, नया माइंडसेट, नया अप्रोच, नई एनर्जी, नया एंथुजियाज्म, नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी, सब कुछ नया। ओके, जो भी बच्चे आज तक बीच में ज्वाइन हुए थे मींस पीके के, तो उनको अभी टेंशन नहीं है, तो वो एके से स्टार्ट करें। ओके, उनकी जो पढ़ाई है दे स्टार्ट विथ एके, पीके का रिवीजन होता रहेगा धीरे धीरे धीरे, वो दूसरे बैच में भी कर सकते हैं। और कल से हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक एनिमल किंगडम। वाओ, टॉपिक एनिमल किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टॉपिक एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। Okay, do you know that there are 5 kingdom according to R.H. Whitakers? There are 5 kingdom according to R.H. Whitakers, and these are दोस्तों kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. In biological classification we discussed about the kingdom दोस्तों, in biological classification we discussed about the kingdom Monera, Protista and fungi, and in kingdom Plantae we discussed about the plant kingdom in detail. In kingdom Plantae we discussed about the plant kingdom in detail. अभी बात करते हैं दोस्तों, what are the features of kingdom Animalia? What are the features of दोस्तों kingdom Animalia in detail, and what are the topics to be covered in this kingdom? What are the different topics to be covered in this kingdom? इसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलो ओके ओके। नाउ ये जो किंगडम एनिमलिया है दोस्तों, इसमें बात करेंगे दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर नंबर 1, दैट इज नंबर 1 दोस्तों बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन। नंबर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन। ओके, एंड इन इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमलिया और व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, what are the criteria that are used to classify animals into the different phylum? So बात करेंगे basis of classification के बारे में, और there are 6 basics, there are 6 fundamental characteristics. Do you know that these animals, they have different form and different structure? Look around yourself and you will find a different types of animal having different shape, different structure, but different color. Okay, although so there are different forms of animal, there are different types of animal, but there are certain characteristics, there are certain fundamental basic characteristics which are present in all of them, or at a certain level of variation, at a certain level of a difference. So what are that basic character that are used, what are that basic criteria that are used for the classification of animal? और उसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों, that is level of organization. Level of organization. Now what is meant by level of organization? Do you know that what is the concept of biological level of organization? आपने ये पढ़ा होगा कि okay, a similar cells come together to form the tissue. Okay, similar cells come together to form the tissue, and similar tissue having common function join together to form the organ, and many organ join together form to organ system, and many organ system join together to form organism. इसे कहते हैं level of organization. Cellular level, tissue level, then organ level, और दोस्तों that is
ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसके बारे में बात करेंगे। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दिस इज वन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। नंबर 1 दैट इज, अलग अलग लेवल है, मैं बात करूंगा अलग अलग लेवल है। नंबर 1 दैट इज दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दैट इज नंबर 1 दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब है दीज आर द एनिमल इन विच ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it means they are only, these animal have only cells. Number 2 दोस्तों, they have tissue. There are certain animals which have tissue level of organization. Tissue level of organization means these are the animal in which, okay, only tissue are present, cells are coming together to form tissue, means organ and organ system is absent in these animal. Number 3 that is दोस्तों organ level of organization, means these are the group of animal in which many tissue join together to form organs, so only organs are present in these animal, organ system is absent. और एक more complex form होता है, that is दोस्तों उसे कहते हैं that is many organ join together to form the organ system. For example digestive system की बात करते हैं, उसमें क्या है? digestive system में tongue, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas, gallbladder. So these are the different organ, they join together to form दोस्तों organ system. जो higher animal है उनमें ये level of organization होता है, they have organ system level of organization. याद रखो, organ system level of organization, ये बहुत important है। हम क्या सीखने जा रहे हैं? Topics to be covered, this is the most important. Index मुझे पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। Okay, so first criteria is the level of organization. First criteria is the level of organization. Now what is the second criteria? What is the second criteria दोस्तों? What is second criteria? Or the second criteria is that is a body symmetry. Now what is the second criteria? Body symmetry होती है दोस्तों, हर एक एनिमल की अलग अलग बॉडी सिमेट्री होती है। बात करते हैं उस सिमेट्री के बारे में। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या 3 टाइप के बॉडी सिमेट्री है, 3 टाइप के। नंबर 1 दैट इज दोस्तों, नंबर 1 बॉडी सिमेट्री होती है दैट इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री means some animal are radially symmetrical. So what is the concept of radial symmetry? What is the concept of second is दोस्तों bilateral symmetry. मैं समझा दूंगा डिटेल में. What is the concept of bilateral symmetry क्या होता है? I'm just trying to introduce some word we are going to use again and again and again and again दोस्तों. और इसके बाद एक सिमेट्री है that is certain animal are asymmetrical, means they do not have any symmetry, they have irregular body form, उन्हें कहते हैं asymmetrical, उन्हें कहेंगे दोस्तों asymmetrical. Then ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया है फॉर क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड द थर्ड वन दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 इसके बाद आएगा दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लो मींस 2, ब्लास्ट मींस सेल, एम्ब्रियोनिक सेल को बोला जाता है ब्लास्ट. सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मींस उसमें 3 लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक याद रखो, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और just wait, okay, just wait. So diploblastic and triploblastic organization, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे एनिमल है जिनमें 2 ही जर्म लेयर होते हैं. जर्म लेयर क्या है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों. एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज आर द 3 जर्म लेयर. उससे सभी बॉडी के ऑर्गन बनते हैं. हमारे जब फीटस एम्ब्रियो होते हैं तो इस एम्ब्रियो में ओके सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स. और फिर दोस्तों उन 3 लेयर का नाम है, जो आउटर मोस्ट है एक्टोडर्म, जो मिडल है मेसोडर्म, और जो इनर मोस्ट है इंडोडर्म बोला जाता है. और उन्हीं लेयर से सब हमारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, हम में भी और बाकी के एनिमल में ही. तो डिप्लोब्लास्टिक, कुछ लोग में 2 ही लेयर होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें 2 ही लेयर है, उन्हें कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक. और कुछ एनिमल ऐसे जिनमें 3 लेयर होते हैं जर्म लेयर के, उन्हें कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक.
सो दोस्तों डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. सो सम एनिमल आर डिप्लोब्लास्टिक, सम एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सम आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. इसमें बात करेंगे क्या दोस्तों, नंबर 1 दैट इज कुछ है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये एग्जांपल आएंगे. व्हाट आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिनमें दो ही जर्म लेयर है, दैट इज कौन से दो है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म इज एब्सेंट इन देम. So what are the types of diploblastic animal? What are the types of triploblastic animal? ऐसे कौन से एनिमल है जिनमें 3 लेयर होते हैं, तो इसके बारे में हम सब जान लेंगे दोस्तों. तो ये है, और एग्जैक्टली वो लेयर दिखते कैसे ये भी हमें जानना है. तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया. नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 बॉडी सिमेट्री, नंबर 3 दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज द नंबर 4th क्राइटेरिया? Okay, to classify animal, dosto, what is the 4th basis to classify animal? That is coelom. Now, what is meant by coelom? Anyone from the class? Anyone from the class? Anyone? किसी को पता है coelom क्या है? What is meant by coelom? Cavity, बरोबर है, मरोड़मा है, बहुत बढ़िया. कोई डेफिनेशन बोलेगा मुझे? डेफिनेशन चाहिए बेटा. कैविटी तो सबको पता है, पर डेफिनेशन, बॉडी कैविटी, ओके, गैप और कैविटी, नहीं 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 नहीं, फ्री स्पेस, ठीक है, बॉडी कैविटी इतना ठीक है. और ओपन कैविटी, सीडो, कोई ओपन कैविटी, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और एक क्लियर लाइन चाहिए वहां पे. बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, एक चाहिए लाइन, विच इज, क्या बात है यार, किसने बोला ये, किसने बोला, खतरनाक, वाव, पवार पार्थ, पीयूष काथार, ओके, और कोई तो भी है, और गायत्री, गायत्री, इन्होंने कहा, और बाकी के लोग भी अभी कह रहे हैं दोस्तों, दैट इज it is a cavity present between body wall and gut wall which is lined by mesoderm, that is called as a coelom. And on the basis of coelom, आपको पता है, on the basis of coelom there are दोस्तों 3 types of animal. On the basis of coelom there are 3 types of animal जिनमें coelom ही नहीं है, उसे कहते हैं acoelomate. इनमें coelom absent होती है. और कुछ ऐसे हैं जिनमें झूठा या फिर खोटी सीलोम होते हैं, उन्हें कहते हैं सूडो. सूडो मीन्स झूठा, फॉल्स सीलोम होती है. तो सूडो सिलोमेट कहा जाता है उन एनिमल को. कौन सा एनिमल सूडो सिलोमेट है, ये हम सब देखेंगे दोस्तों. और नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है सीलोमेट, जो हम है, जो हम है. सीलोमेट एनिमल मीन्स ऐसे जिनमें सीलोम होती है, जिनमें सीलोम होती है. दिस इज एन 4th क्राइटेरिया. This is an 4th criteria. Now, what is the 5th criteria that is used for the classification of animal? What is the 5th criteria that is used for the classification of animal? And that 5th criteria is दोस्तों, that is segmentation. Segmentation or metamerism. Now, what is meant by segmentation? आपसे मेरा सवाल है, what is meant by segmentation? The body of that animal is divided into different segment. इसे कहते हैं segmentation. The body of animal is that divided into different सेगमेंट, उसे कहते हैं सेगमेंटेशन. इसका दूसरा नाम है मेटामेरिज्म. उसका एग्जांपल है अर्थवर्म. अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेड एनिमल. अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेड एनिमल. यस, लाइक कॉकरोच, दे आर आल्सो सेगमेंटेड एनिमल. मेरा आपसे एक सवाल है, आर वी सेगमेंटेड एनिमल? आर वी ह्यूमन बीइंग आर सेगमेंटेड एनिमल? यस और नो? यस और नो? इज दैट आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट? आंसर इज वाव, वाव. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो नो नो, आप गलत हो बच्चों. आंसर इज यस, वी आर सेगमेंटेड एनिमल, वी आर सेगमेंटेड. आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट. ये देखो, ये है हेड, ये है थोरैक्स, और अगर दिखाना चाहूं तो ये है एब्डोमेन. अभी यहां से क्लियर दिखेगा. ये है हेड, ये है थोरैक्स, और ये है एब्डोमेन, और नीचे पेल्विक कैविटी होती है. आवर बॉडी इज डिवाइडेड, we are segmented animal. याद रखो, annelid, arthropod, chordata, AAC are segmented animal. AAC are segmented animal. So segmented animal means body division. उसमें segmented और non segmented होते हैं. Segmentation. This is another criteria. Okay. And number 6, and the most important criteria is presence or absence of notochord. Presence or absence of notochord. याद रखो, presence or absence of नोटोकॉर्ड. नो, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड से क्या बनता है, क्या पता है आपको? क्या बनेगा नोटोकॉर्ड से? क्या बनता है?
क्या बनता है नोटोकॉर्ड से? क्या बनेगा दोस्तों? आहा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि नोटोकॉर्ड से बनता है। मैं जरा बाजू में हटता हूं। वी आर सेगमेंटेड, समझ में आया? हाँ, नोटोकॉर्ड से बहुत सारे लोगों को लगता है, यही तो है डिफरेंस, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। गलत, गलत, आप रॉन्ग हो। नोटोकॉर्ड से बनता है वर्टिबल कॉलम। याद रखो, नोटोकॉर्ड से बनेगा वर्टिबल कॉलम, सभी एनिमल में नहीं, सिर्फ वर्टिब्रेट में। जिनमें नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम उन्हें कहेंगे वर्टिब्रेट, उन्हें कहेंगे वर्टिब्रेट। बट नोटोकॉर्ड सभी में होता है क्या? नहीं। नोटोकॉर्ड इज द फीचर ऑफ which? नोटोकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ, वेदांश बहुत बढ़िया, नोटोकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का फीचर है, नोटोकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा दोस्तों। तो these are the 6 criteria we are going to discuss in detail about, and these are the basis of classification. These are the basis of classification. किसी ने कहा स्पाइनल कॉर्ड बनता है नोटोकॉर्ड से, गलत। तो मुझे कोई बता सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है? स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है? नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। इट इज अ रॉड शेप्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डॉर्सली मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और जिससे बनता है वर्टिबल कॉलम। सो बहुत बढ़िया। किसने बोला स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, गलत। नर्व फाइबर से, गलत। ये शब्द आपने सुना होगा, ओके। हेमिकॉर्डेटा से, नर्वस टिश्यू से, ये ठीक है। ये क्या बात है, कौन बोला? ये राहुल पवार। राहुल पवार कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम नर्व कॉर्ड। दीज आर टू कंफ्यूजर। नर्व कॉर्ड, उस कॉर्ड की स्पेलिंग CORD है। नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन बनता है, और यह है नोटोकॉर्ड, CHORD वाला, CHORD वाला, ये है नोटोकॉर्ड, वो है नर्व कॉर्ड, NERVE CORD। तो लिखो कहे तो भी नर्व कॉर्ड डेवलप इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर CNS। दिस इज एन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। we are still not started our topic, we just discussing what are the topics to be covered. Are you getting me now? Are you getting me or not? So basis of classification दोस्तों, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। और दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस्तों third topics we are going to discuss, that is classification of animal. And you all know that these animal, ये जो animal kingdom है, these are the most developed organisms है on planet earth, animals. And by using these 6 criteria, level of organization LOO, then आफ्टर दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या है दोस्तों? बॉडी सिमेट्री, फिर उसके बाद दैट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, देन सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। बाय यूजिंग दैट this animal kingdom is divided into how many phylum? It is divided into how many phylum? Anyone from the class? How many phylum are there? How many phylum? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कोई लोग 7 बोल रहे, कोई 8 बोल रहे, कोई बोल रहे 11। बहुत बढ़िया। कौन कौन बोला 11? कौन कौन? बस 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 बस, बहुत बढ़िया। AIB 1036। ओके दोस्तों, याद रखो देयर आर 11 फाइलम, 11 फाइलम है। पुष्कर काळे, कृतिका पवार, बहुत बढ़िया। ऋतुज थोरात, देयर आर 11 फाइलम। स्थानिका सिंधे, ओके। पुष्कर 11 फाइलम, 10 नहीं है, 11। आप में से कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई, मैं अनम्यूट करना चाहूंगा 11 के 11 फाइलम विदाउट watching or without opening your book। कोई मुझे बता सकता है what are the different 11 phylum? Anyone from the class? किसको अनम्यूट करूं? किसको अनम्यूट करूं? मी प्लीज, विधि मंत्री। ओके चलो, विधि को अनम्यूट करते हैं और देखते हैं उसको आते कि नहीं, तो फिर दूसरे को चांस देंगे। ओके बोलो बेटा, विधि बोलो। यस सर। प्रोटोजोआ पोरीफेरा। तुमचा आवाज येत नाही, जस्ट वेट। तुमचा आवाज येत नाही, जस्ट वेट। हेलो सर, आता बोलो। हाँ यस सर। प्रोटोजोआ पोरीफेरा निडारिया। अरे आवाज कसं काय? एकच मिनिट ना, एकच मिनिट।
आवाज कसं काय? एक मिनिट, आवाज येत नाही. एकच मिनिट, एक मिनिट. हा विधी, आवाज येतोय? हो सर. हा हा, बोला बेटा, बोला. हा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा निडारिया जस्ट वेट. हा बोला. हा, प्रोटोजोआ हम्म पोरीफेरा हम्म निडारिया प्लैटिहेल्मिन्थस एस्किहेल्मिन्थस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इचेनोडर्माटा हेमिचोर्डाटा कॉर्डाटा एंड ओके. प्रोटोजुआ, फिर बोलो एक बार. पोरीफेरा हम्म, निडारिया हाँ, टेनोफोरा हम्म, प्लैटिहेल्मिन्थस एस्किहेल्मिन्थस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इचेनोडर्माटा हेमिचोर्डाटा एंड कॉर्डाटा. कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Is the Vidi Mantri from Selu Parbhani correct? Yes sir. Is she correct? I am asking to other people. Is she correct? Okay. बहुत सारे बोल रहे हैं नहीं. तो क्या है? विधि कॉन्ग्रेचुलेशंस. पर दोस्तों और कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो. Yes sir, protozoa is not included in the ओके, इसको हटा देते हैं. ये प्रोटोजोआ है, उसको हटा देते हैं यहां से. प्रोटोजोआ, दीज आर द क्लोज रिलेटिव ऑफ एनिमल. अगर कोई हमारा दूर का भी रिश्तेदार कोई बड़ा आदमी बन जाता है, सपोज अभी बहुत सारे लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है और वो मंत्री बोलते थे, हम मंत्री हो गए कोई, तो हम बोलते ये हमारे क्लोज रिलेटिव है. भले उनसे और उनसे हमारी बात भी नहीं हुई और हम बोलते वो हमारे क्लोज रिलेटिव है. एक्चुअली प्रोटोजोआ दोस्तों, बेटा विधि, प्रोटोजोआ बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. तो दे आर क्लोज रिलेटिव एनिमल, बट दे आर नॉट दोस्तों, दे आर नॉट एनिमल. दे आर नॉट एनिमल. तो हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं. सो दोस्तों, उन्होंने सही कहा है. तो ये सब किंगडम है. तो ये सब एनिमल किंगडम में 11 फाइलम होते हैं. और जो 11 फाइलम है, चलो उसी की बात करते दोस्तों. और क्या क्या है 11 फाइलम? और कोई बताना चाहेगा? और कोई तो बोल रहा है नेमैट हेलमिन्थस, कोई बोल रहा है साइलेंट रेटा. ओके, साइलेंट रेटा कहां से आ गया? कौन बताना चाहेगा? ओके, कौन बताना चाहेगा? ओके, जस्ट वेट. ओके, निकिता बाइसन. ओके, चलो ठीक है, जस्ट वेट. हाँ, एक और चांस. इसको पता है. हाँ चलो बोलो बेटा. हाँ Sir, I am audible clearly. हाँ, कुठून आहे तुम्ही सांगा मॅडम. Sir, I am from Jafrabad, Jalna Jilla. ओके, बोलो निकिता मैडम. Porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. वाह, क्या बात, बहुत ही बढ़िया. ओके, चलो अनम्यूट कर दो. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल on the basis of using these 6 criteria: level of organization, body symmetry, diploblastic and triploblastic organization, coelom, segmentation and notochord, that kingdom animal are divided into 11 phylum, and these are number 1. ऐसे कैसे याद रखेंगे? नंबर 1 दोस्तों, ऐसे कैसे याद रखेंगे? these are, याद रखो, these are number 1, that is porifera. और एक इंपॉर्टेंट बात, why they are named as a porifera? why ये इसके ऊपर एमसीक्यू. पोरीफेरा, पोरी का मतलब है पोर्स, छिद्र, openings, और फेरा means having. So these are the animal which have openings on their body, that's why they are named as a porifera, or they are also called as दोस्तों sponges. Porifera याद रखो, this is an first phylum, very important, porifera. Now another is दोस्तों, that is a Coelenterata. Another is the Coelenterata, और इसका दूसरा नाम है नाइडेरिया. ये इसका नया नाम है नाइडेरिया, पुराना नाम है Coelenterata. पोरीफेरा, Coelenterata.
और इसका दूसरा नाम है नाइडेरिया, याद रखो। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नाइडेरिया? बिकॉज दे हैव नाइडोब्लास्ट ऑन देयर बॉडी सरफेस। नाइडोब्लास्ट, दीज आर द सेल्स which are used for defense, which are used for defense. मधमाशी माहिती है तुम्हारा? हनीबीज पता है ना आपको, वो कैसे डंक मारती है, और डंक मारने के बाद दोस्तों स्वेलिंग आ जाती है और इन्फ्लामेशन होती है हमारी स्किन की। वैसे ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं नाइडेरिया जो एनिमल है, इसका एग्जांपल है हाइड्रा, सियानेमोन। ओके, बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों। तो ये नाइडेरिया जो है, इनके ऊपर, ये जो एनिमल है इनके बॉडी के ऊपर नाइडोब्लास्ट नाम की एक सेल है, और वो सेल, उसमें पॉइजन होता है और वो सेल यूटिलाइज की जाती है स्टिंग करने में, एंड दैट इज यूज्ड फॉर, यूटिलाइज फॉर डिफेंस। डिफेंस, खुद के डिफेंस के लिए यूज करते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेंटेरेटा? इंटेरॉन मतलब क्या है? व्हाट इज इंटेरॉन? इंटेरॉन मींस इंटेस्टाइन, इंटेरॉन मींस गट, इंटेस्टाइन, और सिलोन मींस कैविटी। तो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक कैविटी होती है, एक गैस्ट्रिक कैविटी होती है उनके बॉडी के अंदर, इसीलिए सिलेंटेरेटा। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, टीनोफोरा, सी इज साइलेंट हियर। ये टीनोफोरा, सी इज साइलेंट हियर। फोरा मींस बेयरिंग, हैविंग। ओके, टीनो मींस, टीनो का मतलब होता है दोस्तों अ कॉम्ब लाइक प्लेट्स, मींस कंगवा जसा आहे ना, कंगवा, ठीक आहे, कंगव्यासारख्या प्लेट्स असतात त्यांच्या बॉडीवर, अँड दे हेल्प इन लोकोमोशन. सो टीनो का मतलब होता है कॉम्ब, कॉम्ब म्हणजे कंगवा, कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, and these plates help in locomotion, इसलिए उनका नाम है टीनोफोरा. फोरा मीन्स बेरिंग, फोरा मीन्स हैविंग, त्यांच्या बॉडीवर असणं काय? टीनो, कॉम्ब लाइक प्लेट. नंबर 4 पे है दोस्तों प्लैटीहेल्मिन्थस. वाओ, प्लैटीहेल्मिन्थस. नाउ ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस है, याद रखो, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, ये मेरे हाथ जैसा, ये ऊपर, ये है हैंड मेरा, इसके जैसा, ये मोबाइल जैसा, प्लैटीहेल्मिन्थस, फ्लैट. और हेलमिंथ मीन्स वर्म. द मीनिंग ऑफ टर्म हेलमिंथ, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, और ये है दोस्तों फ्लैट वर्म, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्लैटीहेल्मिन्थस, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्लैटीहेल्मिन्थस. नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, दैट इज एस्केहेल्मिन्थस. एस्केहेल्मिन्थस, एस्क का मतलब यहाँ पे आता है राउंड, तो इन्हें कहा जाता है राउंड वर्म. सम पीपल कॉल देम एज अ नेमैटहेल्मिन्थस. सम पीपल, इस एस्केहेल्मिन्थस का दूसरा नाम है दोस्तों नेमैटहेल्मिन्थस, याद रखो, नेमैटहेल्मिन्थ. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हेल्मिन्थ? कहीं तो लिखो बाजू में. हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, WORM. वर्म मींस कीड़ा, छोटा सा कीड़ा. ओके, वर्म, हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, और जो प्लैटी मींस फ्लैट वर्म, एस्केहेल्मिन्थस मींस राउंड वर्म. नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों, दैट इज नंबर 6 पे है, दैट इज एनिलिडा. व्हाई दे आर नेम्ड एज एनिलिडा? एनुलस मींस लिटिल रिंग, छोटे 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 रिंग्स. अर्थवर्म का डायग्राम देख लो. अर्थवर्म बिलोंग टू एनिलिडा. अर्थवर्म की बॉडी ऐसे छोटे 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 रिंग जैसे बनी है, जैसे स्प्रिंग होती है ना हमारे पेन में. अगर मेरे पास पेन है, ये AIB का पेन आपको मिला होगा, शायद मिला है या नहीं, ये AIB का पेन आपको मिला है या नहीं? तो इस पेन में दोस्तों, इस पेन में ओके एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग में छोटे छोटे रिंग है. ओके, स्प्रिंग में छोटे छोटे रिंग है, एंड दिस लिटिल रिंग इज नथिंग बट एनुलस मींस लिटिल रिंग दोस्तों. तो इसीलिए उनकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज. तुम्हाला पेन नाही भेटला, भेटेल नेक्स्ट टाइम मला याच्यानंतर, कदाचित ते संपले असतील. असो, सो दोस्तों एनिलिडा, इसे कहते हैं एनिलिडा, याद रखो. द बॉडी हैविंग लिटिल रिंग. ओके, एनिमल, ओके, उनके बॉडी के अंदर लिटिल रिंग्स होते हैं बॉडी के, दैट इज एनिलिडा. नंबर 7 पे होता है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मतलब क्या है? आर्थ्रो मींस जॉइंट. आपको पता है आर्थ्रो, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर होते हैं जो जॉइंट का इलाज करते हैं. आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है लिम्स. सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. अपेंडेजेस म्हणजे लिम्स. These are the animal दोस्तों, they have jointed appendages. तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है आर्थ्रोपोडा. उनके हाथ और जो लिम्स है, हाथ पैर तो नहीं बोलेंगे, पर लिम्स है वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए आर्थ्रोपोडा. कोई एक लाइन मुझे बता सकता है आर्थ्रोपोडा के बारे में? कोई, क्या बात है, किसी ने तो भी बोल दिया तेजस ने. ज्वाइंटेड एपेंडेजेस, क्या बात है यार. कौस्तुभ खेलौने, दिस इज एन लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज एन लार्जेस्ट फाइलम, याद रखो. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम. आपको ये सब पता है, फिर भी मजा आने वाला है. फिर है दोस्तों मोलुस्का. मोलुस्का, ओके, मोलुस्का का मतलब होता है
मीनिंग ऑफ टर्म मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा ये शब्द मुझे हार्ड लगता है, पर मोलुस्का ये शब्द मुझे सॉफ्ट लगता है। मोलुस्का मऊ अर्थ है शब्द। सो दीज आर दोस्तों सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, और दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया। यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे फाइलम होता है। वी आर डीलिंग विद नाउ एनिमल, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द ज़ूलॉजी। सो दोस्तों ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। फिर है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इकाइनोडर्मेटा? आपने ये शब्द सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके, और डर्मेटोलॉजी एमबीबीएस फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, और कितने मार्क को आता है? 4 मार्क को। एक पूरा सब्जेक्ट सिर्फ 4 मार्क को है। ये आप देख लो एमबीबीएस की गहराई क्या है। डर्मेटोलॉजी, डर्मा मीन स्किन, डर्मा मीन स्किन, और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी स्किन एनिमल, इसके स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं। सो दीज आर स्पाइनी बॉडीड एनिमल बोला जाता है उन्हें, स्पाइनी बॉडीड एनिमल। इकाइनोडर्मेटा इसका एग्जांपल है स्टारफिश, स्टारफिश देखा होगा आपने, स्टारफिश इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नाउ मोलुस्का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 10 पे है, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या है? हेमिकॉर्डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हेमी? हेमी मींस आधा, तो ये आधे कॉर्डेट थोड़ी है, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये हाफ कॉर्डेट है क्या? आंसर इज नो। क्यों कहा गया है इन्हें हेमिकॉर्डेटा? क्यों कहा गया है, कोई मुझे बता सकता है? नॉट वेल डेवलप्ड, फैज कनेक्टिंग, लेस डेवलप्ड, डिवाइडेड, कनेक्टिंग लिंक है। ओके, किसकी किसकी कनेक्टिंग लिंक है? क्या बात है यार, कौन बोला ये? हेमंत, कहाँ था तू भाई इतने दिन, कहाँ गया वो हेमंत, कहाँ गया? वेयर इज दैट हेमंत? ओके, कहाँ गया वो? हेमंत चौहान, हेमंत चौहान, मुझे पता नहीं वो कहाँ का है लड़का, बट दोस्तों स्टोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड अलग, ये स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है। इट इज initially when scientists found these animal that belong to hemichordata, they are exclusively marine, they are exclusively marine, present in sea water, and scientists found that there is a notochord like structure present in their body, but which is not looking exactly like a notochord. So scientists think that that structure is, भले वो नोटोकॉर्ड नहीं है पर नोटोकॉर्ड जैसा है, तो इनको ना आधा तो नोटोकॉर्ड जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम लग दिया हेमिकॉर्डेटा। पर बाद में पता चला कि ये हेमिकॉर्डेटा एक्चुअली ये सब फाइलम था, अंडर फाइलम कॉर्डेटा, फिर बाद में इसका सेपरेट फाइलम बना गया है, इसलिए इसे कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन देम। बात करेंगे डिटेल में हेमी के बारे में। हेमी बहुत अच्छा है, ये सब अपने फ्रेंड है, आज से ये सब फाइलम हमारे फ्रेंड है, ओके, और हमें पूरा हक है कि उनके बारे में जानने का, और वो भी हमें दिल खुला के बोलने वाले हैं कि मेरा ये फीचर है, मेरा वो फीचर है, मेरा ये फीचर है। पर इनके साथ एक कंडीशन आती है दोस्ती बनाने की, इनको रोज हाय हेलो करना पड़ता है, इनको रोज जाके देखना पड़ेगा, हाय हेलो क्या चल रहा है हेमी, क्या की कहना हो, अरे मोलुस्का तेरा क्या चल रहा है, अरे जरा बता तेरे बारे में। तो अगर आप 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में ऐसे करोगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, हर दिन इनसे बात करनी पड़ेगी। और लास्ट में आता है दोस्तों जिससे हम बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा। व्हाई दिस फाइलम इज नेम्ड एज अ कॉर्डेटा? बिकॉज दोस्तों they have notochord in their body, they have notochord in their embryonic development तो इन्हें कहा जाता है कॉर्डेटा। बाकी के जो 10 नंबर के 10 फाइलम है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब नॉन कॉर्डेट है और खाली एक कॉर्डेट है, खाली एक कॉर्डेट है। आगे बढ़ता हूं सॉरी, तो इसे याद कैसे रखें? विधि जैसी लड़की ने या फिर निकिता ने इजी बता दिया व्हाट आर द डिफरेंट फाइलम, क्योंकि उन्होंने वो 10th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ा था, पर बहुत सारे बच्चों को ये फाइलम के नाम ही पता नहीं है, अगर पता भी है तो सीक्वेंस पता नहीं है। तो हाउ टू रिमेम्बर दिस दोस्तों? तो ऐसे याद रखेंगे, यहाँ का पी ले लेंगे, इस पोरीफेरा का पी ले लेंगे, पोरीफेरा से पी, ओके, मान लो यहां से ले लिया मैंने पी, यहां सिलेंटरेटा से सी, टिनोफोरा से भी सी ले लेंगे, भले यहाँ पे सी साइलेंट है पर हम ले लेंगे, ओके, प्लैटिहेल्मिन्थस में प्लैटिहेल्मिन्थस से पी, ओके, फिर दोस्तों एस्केहेल्मिन्थस से ए,
एनेलिडा से ए, आर्थ्रोपोडा से ए, मोलुस्का से यम, इकानोडर्माटा से ई, और दोस्तों हेमिकॉर्डेटा से एच और कॉर्डेटा से सी। और हम एक सेंटेंस बनाएंगे और ये सेंटेंस कुछ ऐसा है दोस्तों, मान लो सेंटेंस कुछ ऐसा है, सेंटेंस कुछ ऐसा बनाएंगे दैट इज, सेंटेंस कुछ ऐसा बनाएंगे दैट इज पीसीसी पामे, पामे नाम का एक सरनेम है पर उसके ट्रिपल ये है उसमें, पामे नाम का एक सरनेम है दोस्तों, पामे मेरा एक दोस्त था। ओके, पीसीसी पामे, और औरंगाबाद में है हाई कोर्ट। औरंगाबाद में कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट है दोस्तों, याद रखेंगे पीसीसी पामे हाई कोर्ट, पीसीसी पामे हाई कोर्ट। और पामे में एक ये नहीं है, ट्रिपल ये है, पीसीसी पामे हाई कोर्ट मींस पी फॉर पोरिफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा, सी फॉर, भले वो सी साइलेंट है पर टीनोफोरा, पी फॉर प्लैटीहेलमिंथस, ए फॉर एस्केलमिंथस, ए फॉर एनेलिडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एम फॉर मोलस्का, ई फॉर इकानोडर्माटा, एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, सी फॉर कॉर्डेटा, पीसीसी पामे हाई कोर्ट। These are the 11 phylum we are going to discuss in a detail. We are going to discuss in detail. ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीसी पामे हाई कोर्ट, ये याद रखेंगे, पीसीसी पामे हाई कोर्ट, ये क्लियर है। और ये पामे में ट्रिपल ये है, तो पहला कौन सा ये हमें पता होना चाहिए, पहला है एस्केलमिंथस, दूसरा है एनेलिडा और तीसरा है आर्थ्रोपोडा। पहला है एस्केलमिंथस, दूसरा है एनेलिडा और तीसरा है आर्थ्रोपोडा। ये ऐसे डेवलपमेंट है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है, या ऐसा इवोल्यूशन हुआ है, या ऐसा इवोल्यूशन हुआ है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, 2 पेजेस का तो इंट्रोडक्शन हो गया। सो दीज आर दोस्तों टॉपिक्स टू बी कवर्ड, पीसीसी पामे हाई कोर्ट। ये हमें बहुत बार हेल्प करने वाला है ये कॉन्सेप्ट, पीसीसी पामे हाई कोर्ट वाला। नाउ मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे एनिमल है, उनका शेप अलग है, साइज अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, बहुत सारे उसमें हर एक फाइलम में अलग अलग क्लास है। ओके, अलग अलग ऑर्डर है, अलग अलग दोस्तों फिर जीनस है, पर कुछ सिमिलैरिटीज उनमें कॉमन है। एंड दिस सिमिलैरिटीज क्या है? वो सिमिलैरिटीज क्या है दोस्तों? मैंने वो जो 6 सिमिलैरिटी का ही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। तो ये कुछ क्राइटेरिया उनमें होते हैं, सब में नोटोकॉर्ड नहीं है, पर ये बेसिक क्राइटेरिया है। जिनमें होता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, जिनमें नहीं होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। जिनमें होता है दोस्तों उन्हें कहेंगे कॉर्डेट, और जिनमें नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन कॉर्डेट। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक जो लोग है, यहां तक जो लोग है, याद रखो, यहां तक जो लोग है दोस्तों, ये वाले यहां तक, ये सभी के सभी लोग, ये सभी के सभी लोग कौन है? ये सभी के सभी लोग क्या है दोस्तों? व्हाट आर दिस? दीज आर, व्हाट आर दिस? ये है नॉन कॉर्डेट, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट है। और दोस्तों ये वाला जो है ना, ये अपना हीरो, सिर्फ एक और एक, ये है कॉर्डेट। इन्हें कहते हैं, जो कॉर्डेटा है इन्हें कहते हैं दोस्तों कॉर्डेट, इन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड है, इनमें नोटोकॉर्ड है। बात करेंगे क्योंकि किसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट, किसे कहते हैं वर्टिब्रेट, किसे कहते हैं क्रैनिएट, किसे कहते हैं अक्रैनिएट, सब डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके ओके, नाउ तो यहां पे हम बात करने वाले हैं, अभी इस टॉपिक में सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि इसके एग्जाम्पल, सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि इसके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एनिमल किंगडम के। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहता है, क्योंकि एक उसका साइंटिफिक नेम है और एक कॉमन नेम है। ओके, एक साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है। जो इटैलिक में लिखा है वो साइंटिफिक नेम है, और दूसरा जो है दोस्तों वो कॉमन नेम है। तो हाउ टू रिमेंबर दिस? तो रोज हम इसको पढ़ेंगे, रोज। ओके, डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे इसे याद रखेंगे। चलो चलो, जो ब्रैकेट में है लिखो कहीं तो भी, जो ब्रैकेट में है वो कॉमन नेम है, और जो इटैलिक फॉन्ट में लिखा है वो साइंटिफिक नेम है। एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ जीनस, उस एनिमल का वो जीनस है। जीनस स्पीसीज आपको पता होंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 चीजें आती है, एक जीनस आता है फर्स्ट नेम, दूसरा है दैट इज स्पीसीज, उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जैसे राना टाइग्रीना,
राना टाइग्रिना, ये फ्रॉक का नाम है, जैसे या फिर दोस्तों जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, यहाँ पे पैंथेरा इज द नेम ऑफ जीनस और टाइग्रिस इज द नेम ऑफ स्पीसीज। तो जो पहला नेम है दोस्तों, वहां पे जो सारे नेम है मोस्ट ऑफ देम आर नेम ऑफ जीनस। तो मेरे साथ कोई बोलना चाहेगा, मैं उसे अनम्यूट करता हूं, मैं आगे बोलता हूं, आप पीछे बोलो, और आपको लिखना है कुछ बातें। ओके वैभवी मोटे, ओके चलो, ओके ओके, आता एक जण आले, रोज एक जण बोलणार आपण, रोज एक जण, आता रोज एक जण आहे, आज वैभवीपासून सुरू करूया, रोज एक जणाला मी घेणार। ओके थोडस थांबा, एकच मिनिटात आलं। आणि मनातली मनात बाकीच्यांनी पण म्हणायचं माझ्या मागे, मनातली मनात किंवा तुम्ही म्हणू शकता तुम्हाला म्यूट ठेवून, वैभवला मी अनम्यूट करतो। रोज एक जण आता आपण बदलणार आणि काही दिवसांनी कोणीतरी ते मनानेच बोलणार न बघता। सुरुवातीला आता आपण बघून म्हणूया। सगळ्यांनी पेज नंबर 50 काढा, 49 किंवा 50, 49 पेज नंबर 49 सुरू करूया। एनसीईआरटी मधलं काढल्या, रेडी? पेज नंबर 49, वैभवी रेडी बेटा? Oh yes sir. ओके चलो, थँक्यू, जस्ट वेट। हा सुरू करतो मी, माझ्या पाठीमागे म्हणायचा, Yes sir. फाइलम पोरिफेरा, Phylum Porifera. सायकॉन्स कायफा, Sycon Scypha. नाही, आपण आता स्वतःला लताजी समजायचं, स्वतःला लता मंगेशकर आणि तसं म्हणायचं, गळ्यावर। ओके, सायकॉन्स कायफा, Sycon Scypha. स्पॉन्जिला फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज, Spongilla freshwater sponge. यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, Euspongia bath sponge. फाइलम सिलेंट्रेट, Phylum Coelenterata. फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, Phacelia Portuguese man of war. एडमसिया सी एनिमोन, Adamsia sea anemone. पेनाट्यूला सी पेन, Penatula sea pen. गॉर्गोनिया सी फैन, Gorgonia sea fan. मियांड्रेना ब्रेन कोरल। Meandrina brain coral. ओके जरा वर बघा, एक दोन हे दिलेले आहेत, ऑरेलिया जेलीफिश, तिथंच त्याचे एग्जाम्पल दिलेत ना पेज नंबर 50 मध्ये, थोड़ा सा ऊपर देखो 3 लाइन पे, ऑरेलिया जेलीफिश है, कहाँ पे है? ऑरेलिया जेलीफिश। ओके ये भी बात करेंगे, ऑरेलिया जेलीफिश। और ओबेलिया पोएम होता है, ओबेलिया पोएम क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबेलिया पोएम। ओबेलिया नाम का एक सिलेंट्रेट है, ओबेलिया नाम का एक सिलेंट्रेट है, ओबेलिया, इसको लिखेंगे पोएम। पॉलिप इन ओबेलिया असेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेडुसा, याद रखो। क्या होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप फॉर्म, पॉलिप ये बॉडी फॉर्म उसके दो है, पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, बाद में डिटेल में बात करेंगे, पर बताता हूं। पॉलिप जो है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पॉलिप फॉर्म में, और वो असेक्सुअली मेडुसा बनाता है, पॉलिप असेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेडुसा। तो दोस्तों ओबेलिया में है पॉलिप इन ओबेलिया असेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेडुसा, ये पोएम का मतलब ये है, वो वाली पोएम नहीं, POEM वाली, ये POAM वाली है। सो ओबेलिया पोएम ऐसे बात करेंगे, ओबेलिया पोएम। किंवा सुरुवातीला मीच तुम्हाला समजून सांगतो, वैभवी पुन्हा एक तुला दुसऱ्या राऊंडला घेतो मी, ओके दुसऱ्या राऊंडला घेतो, जस्ट वेट, हा थांबा 2 मिनिट, सुरुवातीला मीच सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे जरा लक्ष द्या। सो फाइलम सिलेंट्रेटा
फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया सी एनेमोन, पेनाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेएंड्रेना ब्रेन कोरल, ओरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया पोयम, हाइड्रा, हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है, ऊपर दिया है। फाइलम टिनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लाना, फाइलम प्लैटिहेलमिन्थस, टिनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक, प्लानेरिया रीजनरेशन। ये जो एग्जांपल है प्लैटिहेलमिन्थस के, टिनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक, उसके ऊपर वाली एक लाइन, प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लानेरिया नाम का एक प्लैटिहेलमिन्थस है और उसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। क्या होता है रीजनरेशन, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम फ्रैगमेंटेशन, बात करेंगे डिटेल में, पर हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी है, इसलिए वो एमसीक्यू कवर करेंगे, दैट इज प्लानेरिया रीजनरेशन। सो फाइलम प्लैटिहेलमिन्थस, टिनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक, प्लानेरिया रीजनरेशन। फाइलम एस्किहेलमिन्थस, एस्केरियास राउंडवर्म, उचेरिया फिलारिया वर्म, अनकाइलोस्टोमा हुकवर्म। फाइलम एनिलिडा, नेरिस डायोसियस। वाओ, ये नेरिस डायोसियस क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेरिस डायोसियस? ये जो नेरिस नाम का एनिमल है, ये जो नेरिस नाम का एनिमल है दोस्तों, ये क्या होता है? ये डायोसियस है, मींस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, डायोसियस है। बाकी जो होते हैं इनमें, ये जो अर्थवर्म है, ये जो अर्थवर्म है बाकी का, अर्थवर्म एंड लीच, ये दोनों मोनोसियस है। ये सब एमसीक्यू है। अर्थवर्म और लीच ये दोनों मोनोसियस है। डायोसियस मींस द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, और मोनोसियस मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। तो दोस्तों इसलिए नेरिस के आगे डायोसियस लिखेंगे, लिखो वहां पे, लिखो नेरिस के आगे डायोसियस। सो नेरिस डायोसियस, फेरेटिमा अर्थवर्म, हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लिच। नाउ ये जो हिरुडिनारिया है, कितना बड़ा नाम है, हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लिच। तो दोस्तों ये जो हिरू है, ये क्या करता है? ब्लड सक करता है। सैंग्विहोरस बोलते हैं उन्हें, क्या बोला जाता है दोस्तों? वैसे एनिमल को लिखो, सैंग्विहोरस बोलते हैं। सैंग्विहोरस, ब्लड सकिंग एनिमल, ब्लड सकिंग एनिमल, सैंग्विहोरस, ब्लड सकिंग एनिमल। ये कहीं तो भी लिखो। वो लीच है, कुछ अमंग द फॉलोइंग इज सैंग्विहोरस, ये क्वेश्चन आएगा। सैंग्विहोरस एनिमल ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, जो ब्लड सक कर लेते हैं, एक्टोपैरासाइट है। तो हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच। तो दोस्तों हीरू से याद रखो धीरू, रिस्पेक्ट है, पहले तो रिस्पेक्ट है धीरूभाई अंबानी का, धीरूभाई अंबानी का रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, ओके, मेरे दिमाग में भी, ओके। मैंने कितने बार उनका मूवी देखा है गुरु। तो धीरू ने क्या किया? पूरे इंडिया का पैसा सक कर लिया, कमा लिया, पूरे दुनिया का पैसा सक कर लिया, ओके। उन्होंने क्या मनी सक कर लिया, धीरू ने पैसा सक कर लिया। ये हीरू क्या करता है? ब्लड को सक कर रहा है। तो धीरू से याद रखेंगे हीरू, हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच। नाउ तो ये हो गया दोस्तों फाइलम एनिलिडा, नेरिस डायोसियस, फेरेटिमा अर्थवर्म, हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच। फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ इकोनॉमिकल एग्जांपल डायरेक्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, अपिस, हनीबीज, बॉम्बिक, सिल्कवर्म, लैक्सीफर, लैक इंसेक्ट। तो ये हो गया इंसेक्ट के नाम, ये हो गए इंसेक्ट के नाम दोस्तों। फिर है दोस्तों कुछ वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर द वेक्टर्स? वेक्टर्स के बारे में मैंने बोला था। वेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स दीज आर दोस्तों डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं। डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट ये इंसेक्ट होते हैं, और याद रखो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्दी पर्सन है उसको ये डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, उसे कहते हैं डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट। तो दैट इज देयर आर सर्टेन इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट है दोस्तों जो डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, उनमें से है दैट इज यहाँ पे दिया है एनाफिलस। क्या नाम दिया है? एनाफिलस, लिखो कहीं तो भी। तो एनाफिलस कौन सा डिसीज ट्रांसमिट करता है दोस्तों? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, याद रखो एमसीक्यू। फिर है दोस्तों दैट इज क्यूलेक्स। ये जो क्यूलेक्स है ये कौन सा डिसीज ट्रांसमिट करता है पता है आपको? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है डिसीज, इसका नाम है फिलारियासिस। क्या नाम है? फिलारियासिस, या फिर उसी को कहा जाता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंट हाथी रोग, एलिफेंटियासिस हाथी रोग, ये ट्रांसपोर्ट करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। और नंबर 3 पे दोस्तों दैट इज एडिस इजिप्टी।
एडिस, ये बहुत डेंजर है। एडिस क्या क्या ट्रांसफर करता है? एडिस दोस्तों, ओके, ये फिलारियासिस ट्रांसमिट करता है, या फिर दूसरा एक डिसऑर्डर दैट इज जापानीज। ओके, याद रखो इस डिसीज को, जापानीज इनकेफेलाइटिस। क्या है? जापानीज इनकेफेलाइटिस म्हणजे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन इन जापानीज इनकेफेलाइटिस। थोड़ा सा पेन का टिप थोड़ा सा ये करता हूं। जापानीज इनकेफेलाइटिस, क्या नाम है? जापानीज इनकेफेलाइटिस म्हणजे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। इनकेफेलॉन म्हणजे ब्रेन, इनकेफेलाइटिस म्हणजे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, जापानीज इनकेफेलाइटिस, याद रखो। फिर है दोस्तों दैट इज एडिस, और ये एडिस कौन सा डिसीज ट्रांसमिट करता है? तो एडिस ट्रांसमिट करता है येलो फीवर को। अफ्रीका में पाया जाता है ये डिसीज, येलो फीवर, येलो फीवर। फिर दोस्तों पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट डेंगू या फिर डेंगू, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब है सिलेबस में आगे चल के। कहां पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, एंड येलो फीवर। तो दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे? याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। एडिस, तो इसे ऐसे बात करेंगे दोस्तों। फाइलम आर्थ्रोपोडा, Apis honeybees, bombyx, silkworm, laxifer, lac insect. Then vectors: Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex japonicus encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever. Gregarious pest: Locusta locus, living fossil, Limulus king crab. Phylum mollusca: Pila, apple snail, Pinctada, pearl sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, sea hare, Dentalium, testel, Chitoplura, chiton, Phylum Echinodermata, Asteria, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, beetle star, Phylum Hemichordata, Baranoglossus, सॅकोग्लॉसस, फायलम कॉर्डेटा. इकडे बघा त्याचे एक्झाम्पल इथं आहेत. हे फिगर ॲस्किडिया ना त्याच्या बाजूला एक्झाम्पल. त्याच्यामध्ये फायलम कॉर्डेटामध्ये 3 सब फायलम आहेत. सब फायलम युरोकॉर्डेटा, सब फायलम सेफेलोकॉर्डेटा, और इकडे असतो सब फायलम व्हर्टिब्रेटा. त्याचे पुन्हा हे क्लासेस सुरू होतात. मी असं वाचल: फायलम कॉर्डेटा, सब फायलम युरोकॉर्डेटा, एस्किडिया, साल्पा, डोलिवोलम, सब फायलम सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लांसलेट, subphylum vertebrata, class cyclostomata, page number 56 वर या. class cyclostomata, Petromyzon lamprey, magazine hagfish, class chondrichthyes. example: Scoliodon dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray. आता स्टिंगरे म्हणजे काय? मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर एकदा आले होते बघा हे स्टिंगरे. ते ना असं बाईट करतात, ओके, स्टिंग मारतात, त्याला म्हणायचं स्टिंगरे. हे ट्रायगॉन स्टिंगरे. आणि वर एक दिलेले बघा टॉर्पेडो ब्रॅकेटमध्ये, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, आणि तिथे दिलेले टॉर्पेडो, ते फिशचं नाव आहे. सो ट्रायगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे, त्याला बाण मारून लिहा, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे म्हणतात त्यांना. तसं मग क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कॅरकॅरोडॉन ग्रेट व्हाईट शार्क, ट्रायगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे. क्लास ऑस्टिकथाइस, मराइन फिशेस, Exocetus flying fish, hippocampus sea horse, freshwater fishes, labio rohu, catla cutla, clarius magur, aquarium fishes, betta fighting fish, pterophyllum angelfish. फाइटिंग कौन करता है, बेटा या बेटी? रास्ते पे फाइटिंग करता है बेटा, और घर पे फाइटिंग करती है बेटी. सो बेटा फाइटिंग बेटा करता है, घर पे लड़कियां फाइट नहीं करते, ऐसा मान लेते हैं हम. So beta fighting fish, pterophyllum angelfish, class Mammalia, Bufo-toad, rana frog, hyla tree frog, salamander, ichthyophis, limbless amphibia. Class Reptilia, Chilon turtle, Testido tortoise. Now what is the difference between turtle and tortoise? टर्टल म्हणजे एक्सक्लुझिव्हली पाण्यातच राहणार असतं, लक्षात ठेवा. हे जे वरचं एक्झाम्पल आहे टर्टल, त्याला पाय म्हणजे फ्लॅप्स असतात, रादर दॅन लिम्स दे हॅव फ्लॅप्स, ओके. और वो एक्वेटिक एनिमल है. आणि जे टॉर्टॉइज आहे, कासव, ते एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल आहे, एम्फिबियन लाईफ सायकल आहे त्याची, एम्फिबियन लाईफस्टाईल आहे. सो हा फरक आहे टॉर्टॉइज आणि टर्टल मध्ये. टर्टल मधले बघा त्याचे
मी डिफरन्स सांगणारच नंतर, पण थोडेसे फ्लॅप्स लाईक लिम्स असतात. आणि टॉर्टॉइज म्हणजे कासव जमिनीवर पण चालू शकतं आणि पाण्यात पण असू शकतं. सो चिलॉन, टर्टल, टेस्टिडो, टॉर्टॉइज, कॅमेलियन, ट्री लिझार्ड, कॅलोटस, गार्डन लिझार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमिडॅक्टिलिस वॉल लिझार्ड, पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, कोब्रा, बंगारूस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर, क्लास एव्स, कार्वस, Corvus crow, Columba pigeon, Sitacula parrot, Strutio ostrich, Pao peacock, Aptendoids penguin, Neophron vulture. Class Mammalia. Oviparous mammal म्हणजे अंडे देणारे प्राणी. Oviparous mammal म्हणजे अंडे देणारे mammals. Oviparous mammal में एग्जांपल है Ornithorhynchus platypus. क्या नाम है उसका? Ornithorhynchus platypus. फिर Viviparous mammal Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balanoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you. तो ये हम रोज बात करेंगे इसके बारे में, रोज पहले मैं ये बताऊंगा आपको और फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे. एंड दिस इज द वे टू लर्न. मेरा एक वादा है, मेरी गारंटी है, एक भी एग्जांपल वाला एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, एक भी. ओके ठीक है, तो रुकते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिकली? चक्कर क्यों आ रहा है बेटा? आयुष, सोनी, खाना नहीं खाया क्या? ओके